Good morning, class. Today we'll start with class 8, history, chapter 8, woman, caste and reforms. So, this is our first lecture and this is our introductory class. So, in previous times or before 200 years ago, there were so many restrictions over woman or girl in a society. They were not allowed to educate and they were not allowed to go outside of the home, and they were not even allowed to freely move into public places or markets. So basically, in ancient times, we know that many restrictions were put over women, but nowadays such restrictions are not found in a society or in a country. So basically, in that particular time or before or in ancient time, women had so many problems and they were forced to remain in home, do domestic work and stuck to the family problems. So these were the major common problems faced by women in ancient history or ancient times. So let's start our chapter. First one is, have you ever thought of how children lived about 200 years ago, and nowadays most girls from middle class families go to school and often study with boys. On growing up, many of them go to colleges and universities and take up jobs after that. So in ancient time, women or girls were not allowed to go to schools. They were not right to education, and they were not even have the right to job or to move freely outside of home. But nowadays these things have been changed. So they have to be adults before they are legally married, and according to law they can marry anyone they like from any caste and community, and women's widows can remarry too. So ancient times there were so many restrictions, but nowadays a girl who wants to marry anyone, he can marry either of his own caste or his own community, and nowadays widow can also remarry. So हम कह सकते हैं कि लास्ट कुछ समय पहले 200 साल पहले जो महिलाएं थी उन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कि वो अपने मन से एजुकेशन नहीं कर सकती थी, अपने मन से घर के बाहर नहीं जा सकती थी, उनको जो है घरेलू काम करने पड़ते थे। बट ऐसा आज नहीं है, उनको जो है एजुकेशन राइट नहीं था उस समय, और उस समय बहुत सारे क्रूर जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई होते थे किस पे, वुमेन्स थे। और उस समय एक मेंटालिटी थी लोगों के बीच में कि अगर कोई लड़की पढ़ने जाती है या फिर वो एजुकेट होती है देन वो बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी। सो ये एक मेंटालिटी जो है उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जिसकी वजह से वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन। एंड लेकिन आजकल ये ऐसा नहीं है, आजकल सब चीज़ें जो है वो बदल गई है, वुमेन्स को जो है इक्वली राइट मिल गया है अकॉर्डिंग टू द मैन एंड वुमेन। सो बेसिकली नाउअडेज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. So let's say all women like all men can vote and stand for elections. Of course, these rights are not actually enjoyed by all. Poor people have little or no access to education, and in many families, women cannot choose their husbands. But still हम कह सकते हैं कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज में या फिर कुछ पुअर फैमिलीज में आज भी वुमेन जो है वो सारे राइट्स को इक्वली एंजॉय नहीं कर पाती है एज कंपेयर टू मेन। बट देयर आर सम फैमिलीज जो कि इस चीज को अलाउ करते हैं, बट देयर आर स्टिल सम फैमिलीज और वुमेन्स हु कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड इन देयर ओन टर्म्स। मीन्स वो अपने पसंद से किसी को मैरी नहीं कर सकती है, क्योंकि आज भी समाज में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं ओवर द गर्ल चाइल्ड और ए वुमन। एंड सो 200 years ago things were very different. Most children were married off at early age. Both Muslim and Hindus men could marry more than one wife. So basically हम कह सकते हैं 200 साल पहले या फिर 200 साल पहले जो है गर्ल चाइल्ड है उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, और उस समय चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत ही फैशनेबल था। और इसमें बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन जो है इसमें 1 से 2 से ज़्यादा शादियाँ
होती थी एक ही हस्बैंड पे। सो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस थे आज से 200 साल पहले बहुत ही ज्यादा कॉमन था, बट नाउअडेज ऐसा नहीं है। In some parts of the country, widows were praised if they choose that by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. So ancient times में हम जानते हैं कि यहाँ पे एक प्रथा चली थी जिसको हम लोग सती प्रथा कहते हैं। सती प्रथा। सती प्रथा। एंशिएंट टाइम में एक प्रथा थी जिसको हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं, और ये सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि अगर किसी वुमन के हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उस वुमन को अपने पति के डेड बॉडी के साथ में ही आग में जलाया गया या फिर उसको जलना पड़ता था। सो ये जो है एक इस तरह का जो प्रैक्टिस है इसे हम क्या कहते हैं, सती प्रथा कहते हैं। सो इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ दे, तो यहाँ पे उस समय में जो भी पत्नी अपने पति के चिता के साथ में जलती थी उसको जो है हम लोग बहुत ही अच्छे नज़र से या फिर उसको बहुत ही रेस्पेक्ट देते थे, लेकिन बहुत सारे वुमेन्स ऐसे थे जो कि इसको अपोज करती थी, और जो वुमेन्स इसको अपोज करती थी उनको जो है वो फोर्सफुली उस फ्यूनरल में उनको बर्न कर देते थे। तो ये प्रथा जो है एंशिएंट इंडिया में बहुत ही ज्यादा क्रूर थी इन वुमेन्स। सो वुमन who died in the same manner whether willingly or otherwise were called sati. So meaning virtuous woman। मीन्स हम कह सकते हैं ये जो प्रथा में अगर वो कोई पार्टिसिपेट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअस वुमन कहते हैं। सो वुमन राइट्स टू प्रॉपर्टी वैज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड। एंशिएंट टाइम्स में महिलाओं को प्रॉपर्टी का जो राइट है ये भी नहीं दिया गया था। एंड बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ ए वुमन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम ए विडो। सो उस समय हम कह सकते हैं गर्ल्स को राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं थी, इसके बाद गर्ल्स को जो है वो एजुकेशन के राइट्स नहीं थे। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे उनका ये मानना था कि अगर वुमन को हम एजुकेट करते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है वो विधवा हो जाएगी। सो ये जो मेंटालिटी थी इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द वुमेन्स और गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन। सो डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वन इन सोसाइटी। यहाँ पे डिफरेंस जो है मेन एंड वुमेन के बीच में ही एक ऐसा एक ही डिफरेंस नहीं था, बल्कि बहुत सारे डिफरेंसेस थे इन अदर मैटर्स। इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड along lines of caste। अगर हम दूसरे इलाकों में देखें तो लोग जो है वो कास्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड थे। जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया में जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, तो यहाँ पे ये जो पीपल है सोसाइटी जो है वो इस टर्म्स में डिवाइडेड थे। और यहाँ पे जो ब्राह्मण एंड क्षत्रिय है दे वर टर्म्ड एज अपर कास्ट एंड द वैश्यास एंड द शूद्रास वर टर्म्ड एज द लोअर कास्ट। सो देन केन पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, मीन्स हम कह सकते हैं लोअर कास्ट में आर्टिसंस, पीजेंट्स, पॉटर्स एंड आयरन स्मिथ, ये सारे लोग जो है वो किसमें आते थे, शूद्रास में। सो एट द लोएस्ट रंग वेयर दोज हु लेबर्ड टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन और वर्क एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट करते थे और इसका जो है वो बहुत ज़्यादा उनको जो है गलत इस्तेमाल करते थे और उनके अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे वर्क्स जो है वो हुआ करते थे। सो द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मेनी ऑफ दिस ग्रुप दैट एट द बॉटम एंड अनटचेबल। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स और बाथ इन द पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट वे बाथेड। दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स। सो इस समय हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो वर्ण व्यवस्था थी इसके तहत बहुत सारे छोटे जात के ऐसे लोग थे जिनको जो है मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया, उनको पूजा करने का अधिकार नहीं था, वो उन तालाबों में नहीं नहा सकते थे जहाँ पे अपर कास्ट नहाते थे, वो उन कुएं से पानी नहीं पी सकते थे जिन कुएं से अपर कास्ट के लोग पानी पीते थे। सो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सोसाइटी में उस समय हुआ करते थे बिफोर 200 years ago। सो ओवर द 19th and 20th centuries many of these norms and perceptions slowly change. Let us see how this happened। लेकिन
19वीं और 20वीं सदी के बाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। ये सारे प्रैक्टिसेस जो थे वो अब कम हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये सब जो है किस तरह से चेंज हुए या फिर किस तरह से इनमें डेवलपमेंट हुए। सो वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। सो क्लास का फर्स्ट टॉपिक इज वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। सो क्लास हम देखेंगे कि ये सारे जो प्रथाएं थे एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न टाइम जो है किस तरह से इनमें बदलाव हुए। सो working towards change. So let's see, from the early 19th century we find debates and discussion about social customs and practices taking on a new character. One important reason for this was the development of new forms of communication. अब देखिए ये जो चेंज आया था वो किस पे बेस्ड था? कम्युनिकेशन बेस्ड पे। तो हम कह सकते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी के बाद जो है इसमें ये जो चेंज आया वो कब स्टार्ट हुआ? इन अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ और ये किस पे इफेक्ट किया? द न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के स्टार्ट होने की वजह से ये जो सोशल इविल्स थे हमारे सोसाइटीज में इसको धीरे धीरे जो है हमने इराडिकेट करना शुरू कर दिया। एंड दिस प्रॉब्लम्स वेर रिसॉल्व्ड बाय द मेनी reformers, and for the first time books, newspaper, magazines, leaflets and pamphlets were printed. So ये वो दौर था 19th सेंचुरी का हम कह सकते हैं। इस समय में बहुत सारे नए चेंजेस हुए, जैसे कि हम कह सकते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पे नए बुक्स आ गए, न्यूज़पेपर आ गए, मैगजीन्स आ गए, लीफलेट्स आ गए एंड पैम्पलेट्स आ गए। इससे जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है विद इन पीपल ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा और जो भी आइडियाज थे अबाउट सोसाइटी ये भी बहुत तेजी से चेंज होने लगे। सो दिस वेर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल देन द मैन्युस्क्रिप्ट दैट यू हैव रीड अबाउट इन क्लास 7। सो हम सब जानते हैं कि 19वीं सदी के पहले जो लोग रिच थे वही बुक्स को अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि बुक्स वेर इन फॉर्म्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट जो है आपने पढ़ा है क्लास 7 में व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट। और ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है बहुत ही कॉस्टली पड़ता था तो बहुत ही कम लोग इसको अफोर्ड कर पाते थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड पीपल्स के बीच में ही हुआ करते थे। लेकिन आफ्टर 19th सेंचुरी या फिर बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में न्यू बुक्स, मैगजीन्स और पेपर, न्यूज़पेपर जो है वो छपने के बाद लोगों में कम्युनिकेशन जो है बहुत तेजी से होने लगे। सो therefore ordinary people could read this and many of them could also write and express their ideas in their own languages. All kinds of issues, social, political, economic and religious, could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well. In the new cities, the discussion could reach out a wider public and could become linked to movement for social change. तो ये जैसे ही 19th सेंचुरीज में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स इन सब का भी आविष्कार होने लगा तो जो कम्युनिकेशन है लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये कम्युनिकेशन बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंच गई कि ये एक जो है मास मूवमेंट के रूप में शुरू हो गया फॉर द चेंज इन सोसाइटी। तो बहुत सारे लोगों ने चेंजेस ऑफ सोसाइटी जो है वो उन्होंने करना शुरू कर दिया और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होने लगे और उन एरियाज में जहाँ पे एक लैंग्वेज जो है वो डिफर करती है दूसरे लैंग्वेज से, वहाँ पे उनको ट्रांसलेट करके कहा गया और इसी तरह से लोगों में बहुत ज़्यादा vigorously they were supporting against the social change in a society. So these debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. So ये जो social change है इसमें सबसे ज़्यादा सहयोगी जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे उन्होंने किया। फॉर एग्जाम्पल वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1772 के 2 and 1883 के अंदर में राजा राम मोहन रॉय ने एक रिफॉर्म स्टार्ट की। उन्होंने एक सभा का स्टार्ट किया जिसका नाम था ब्रह्म सभा और ये जो ब्रह्म सभा है उन्होंने कहाँ पे खोला था? कलकत्ता में। एंड पीपल सच एज राजा राम मोहन रॉय आज डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंज वर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्टिस प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विद। सो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इस समाज के तहत
उनमें जितने भी रिफॉर्मर्स थे उनका ये मानना था कि जो भी सोशल इविल या फिर अनजस्टिस हो रही है सोसाइटी में, इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, खत्म करना है। स्पेशली इसमें हम कह सकते हैं सती प्रथा एंड विडो रीमैरिज was also the main motto behind these social reforms, and they thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practice and adopt a new way of life. और इनका एक ये भी मतलब था कि वो लोगों में जागरूकता फैलाएं कि हमें जो एंशियंट ट्रेडिशन या फिर प्रैक्टिस जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं इनको भी हमें चेंज करना होगा, ताकि हमें जो नए जमाने के साथ नया लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना होगा, तभी हम जाकर के क्या कर सकते हैं, ये जो भी सोशल इविल्स हैं हमारी सोसाइटी में इसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड दिस वाज द ओनली वे बाय विच सोसाइटी कैन बी चेंज। सो Raja Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. So इसका जो ब्रह्म समाज का जो मेन इंटेंशन था कि लोगों में जो वेस्टर्न एजुकेशन है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए और साथ ही साथ इसमें फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन की मांग जो है वो रखी जाए और वुमेन्स को ये सारे राइट्स जो है वो प्रोवाइड की जाए। देन he wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen and not allowed to move out and become educated. So इन्होंने इस चीज को अपोज किया कि जो महिलाएं हैं उनको जो है सिर्फ घर में ही रहना है, उनको घर के काम करने हैं, उनको किचन में काम करना है और उनको घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं है और इवन दे वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन। सो ये सारी चीजें जो है इसके खिलाफ ब्रह्म समाज जो है वो अगेंस्ट में थी एंड ब्रह्म समाज चाहते थे कि वहाँ पे इन सोसाइटीज में वेस्टर्न एजुकेशन को दिया जाए और साथ ही साथ वुमेन्स को जो है फ्रीडम एंड इक्वालिटी दोनों ही दिए जाए कंपेयर टू मेन। सो क्लास, so let's see some of the major points regarding working toward change. So what are the main points regarding the changes? So let's see, first one is in the early 19th century, things changed. Things changed because of the development of new ideas or new forms of communication. Indian reformers such as Raja Ram Mohan Roy founded the Brahmo Samaj. Brahmo Samaj in Calcutta. Calcutta in 1772 to 1833.
described he felt that changes changes were necessary in society and in just practice needed to be done. Needed to be done away. He was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. So class, these are the main points regarding working towards change. So class, let's move to our next topic, changing the lives of widows.